Hello everyone, welcome to my channel Chemistry. In my last video we have seen with nucleophilic substitution reaction. Today we are going to do SN2 and SN1 mechanism. So let us start with SN2 mechanism. SN2. SN2, the 2 stand for bimolecular. N stand for nucleophilic and S stand for substitution. So SN2 is bimolecular nucleophilic substitution reaction. It is a bimolecular nucleophilic substitution reaction. What is nucleophile? Nucleophile is a nucleus loving species, that is a negatively charged ion which is going to attack on a positive center. That is my nucleophile. So what will happen? Halogen will be replaced by a better nucleophile, as you already know, that CX. Here X is also a nucleophile, but better nucleophile than X will come and it will attack on carbon. So X will get removed and you will get carbon nucleophile, obviously 3 bonds with carbon, plus X minus. This type of a reaction is known as nucleophilic substitution reaction. Today we will see with the mechanism of SN2 mechanism. So let us understand SN2. Now another thing is, consider a reaction. For the reaction that we are going to study, SN2 reaction, consider, first point, consider reaction methyl bromide CH3Br plus aqueous KOH. This reaction we have seen in last video. So what it will give? This KBr will get removed. This KBr will get removed. So Br will be replaced by a stronger nucleophile, that is OH plus KBr. This is your methanol and this is bromomethane. Now the second point will be rate of reaction. Rate of reaction. So rate of this reaction depends on, as it is bimolecule, so rate of reaction depends on two molecules which are taking part in the reaction. So which are these two molecules? One is methyl bromide, another is KOH, that is substrate plus reagent. This is your substrate, this is your reagent. So rate of reaction depend upon methyl bromide, concentration of methyl bromide and concentration of KOH. So if we will remove this proportionality sign, we will put a constant. Where this K stand for rate constant. After that, my third point will be mechanism. So it is one step reaction, one step mechanism. It is one step mechanism. Let us see what will happen in mechanism. What is mechanism? Mechanism is a stepwise description of a reaction.
मतलब रिएक्शन कैसे हो रहा है उसका स्टेप बाय डिस्क्रिप्शन को बोलते हैं मैकेनिज्म। कौन कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, when we will do the study of that is known as mechanism. So let us see, let us consider that reaction methyl bromide. This is your hydrogen bromine, both are present in the plane. One hydrogen is present below the plane and one hydrogen is present above the plane. Now on this your OH minus will come and attack. नाउ जब OH माइनस विल कम एंड अटैक, OH माइनस अटैक करने आएगा तो क्या होगा, बीच में तो ब्रोमीन है, ब्रोमीन इज अ बल्की ग्रुप, बड़ा ग्रुप है, वो भी तो न्यूक्लियोफाइल है, मतलब नेगेटिव चार्ज भी है, OH भी नेगेटिव चार्ज है, दोनों इलेक्ट्रॉन रिच हैं, तो दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। उसके अलावा ब्रोमीन बड़ा ग्रुप है तो वो उसके रास्ते को रोकेगा, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। Therefore OH, what OH will do, OH will attack from back side, OH will attack from बैक साइड, क्योंकि पीछे तो हल्का फुल्का हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को अपने रास्ते से हटाना इजी है, और ब्रोमीन एक भारी भरकम ग्रुप है, उसको अपने रास्ते से हटाना डिफिकल्ट है। इसीलिए OH क्या करेगा, वो ब्रोमीन से जाके पंगा नहीं लेगा, वो जाके पीछे से हाइड्रोजन की तरफ से अटैक करेगा। सो व्हाट विल हैपन, जस्ट सी, ये कार्बन और Br के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और कार्बन और OH के बीच का बॉन्ड फॉर्म होगा, बाकी तीन हाइड्रोजन अपनी जगह। इस स्टेप को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप एंड दिस विल बी स्लो स्टेप। ये प्रोसेस बहुत फास्ट नहीं होगी, आराम से होगी, स्लोली स्लोली, एंड देयरफॉर दिस इज नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, वो इस स्टेप से हमें पता चला कि रेट ऑफ रिएक्शन मिथाइल ब्रोमाइड पे भी डिपेंड करता है और KOH पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि दोनों ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में पार्ट ले रहे हैं। ये जो स्टेप बनी, यहां पर कार्बन के 5 बॉन्ड है, एक टूटा नहीं है और एक जुड़ा नहीं है, एक जुड़ रहा है एक टूट रहा है, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। एंड ऑब्वियसली ट्रांजिशन स्टेट है, कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा है तो इट इज अनस्टेबल, अनस्टेबल है तो फास्ट रिएक्शन होगा। फास्टली क्या बनेगा, कार्बन बनेगा। अब कार्बन के इस साइड OH आ गया, ये हाइड्रोजन अपनी जगह, अबाउ द प्लेन हाइड्रोजन, बिलो द प्लेन हाइड्रोजन। अब ये प्लस Br माइनस निकल गया। हुआ क्या, जैसे कि सपोज अम्ब्रेला है, बहुत ज्यादा हवा चल रही होती है, अगर हम अम्ब्रेला लेके बारिश में निकलते हैं तो अम्ब्रेला कैसे होता है, ऐसे झुका हुआ होता है, राइट, लाइक दिस। सपोज दिस इज योर अम्ब्रेला, ये उसकी छड़ी है और ये एक डायरेक्शन में खुला हुआ है। अब जब बहुत तेज हवा चलती है तो क्या होता है, अम्ब्रेला इन्वर्ट हो जाता है, उल्टा हो जाता है, तो ये मॉलिक्यूल भी अम्ब्रेला की तरह पूरा का पूरा उल्टा हो गया, तो इसे बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, या फिर इसे वेल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं, क्योंकि वेल्डन करके साइंटिस्ट ने इसको फाइंड किया था, वेल्डन इन्वर्जन। सो व्हाट हैपेंड इन मैकेनिज्म, जस्ट राइट डाउन क्विकली, लेट अस राइट डाउन क्विकली, फास्टली हम लिख लेते हैं क्या हुआ मैकेनिज्म में। बेसिकली फर्स्ट थिंग, इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, OH minus attack from back side। क्यों बैक साइड से अटैक किया, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ OH
ऑफ Br माइनस। स्टेरिक हिंड्रेंस सबको समझ में आया? मतलब आपको सपोज गेट के अंदर घुसना है और बीच में कोई हैवी आदमी खड़ा हो गया गेट पे, तो आप उसको क्रॉस करके तो जा नहीं सकते हो, तो फिर जब तक वो हटेगा नहीं आप वहां से जा नहीं सकते हो, तो आप क्या करोगे? आप दूसरा रास्ता देखोगे जाने के लिए। तो Br बीचों बीच गेट के खड़ा हो गया है और वो OH को अंदर आने का रास्ता नहीं दे रहा, इसे हम बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। नाउ सेकेंड थिंग is transition state. In transition state, formation of COH bond and breaking of CBr bond take place simultaneously. ये दोनों चीजें एक साथ होंगी, ब्रेकिंग ऑफ CBr बॉन्ड और फॉर्मेशन ऑफ COH बॉन्ड। एंड फाइनली लास्टली प्रोडक्ट obtained with inversion of configuration. So this is your SN2 mechanism. This is your SN2 mechanism. The question will come for 3 marks in your board examination. And what will be the question? Write a note on alkaline hydrolysis of methyl bromide or give SN2 mechanism. Or it could be directly SN2 mechanism they can ask you, or they will ask you write a note on the mechanism of alkaline hydrolysis of methyl bromide. So these 2 questions are possible, where this will be that for 3 marks you will write everything whatever I have written on the board. Now what is inversion? अगर ये जो है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता, अगर सपोज ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता, अगर ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता, यहां पर सपोज CH3 होता, यहां पर सपोज C2H5 होता, सो अगर ये डी रोटेटिंग होता तो ये जो है ये L रोटेटिंग होता। इसका मतलब हुआ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अगर मेरा रिएक्टेंट D होता तो मेरा प्रोडक्ट जो है वो L होता, उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती। सो अगर हमारा रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव होता देन प्रोडक्ट विल ऑल्सो बी ऑप्टिकली एक्टिव। आई राइट डाउन हियर ओनली इफ रिएक्टेंट is optically active, then product will be also optically active. DNN everyone knows, अगर रिएक्टेंट डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता, अगर वो लाइट प्लेन पोलराइज लाइट को राइट की तरफ रोटेट करता तो जो प्रोडक्ट बनता वो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट की तरह रोटेट करता। दैट इज मीन बाय इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। सो राइट डाउन। नाउ वी विल स्टडी विद द फैक्टर्स दैट अफेक्ट दिस SN2 mechanism. Factor affecting. First factor is it is bimolecular reaction. So what I mean by bimolecular reaction? Rate of reaction is directly proportional to concentration of substrate
and concentration of nucleophile. So thirdly, strength of nucleophile favor this reaction. मतलब क्या हुआ इस बात का कि अगर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा तो SN2 मैकेनिज्म होने के चांसेस बढ़ जाएंगे. नेक्स्टली, इट इज फेवर बाय पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट. अप्रोटिक सॉल्वेंट. Now what is अप्रोटिक सॉल्वेंट? पोलर मतलब आपको मालूम है जिसमें दो अलग अलग चार्ज हो. फॉर एग्जाम्पल एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है. मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया? पोलर हो गया. अप्रोटिक. अप्रोटिक मतलब जो हाइड्रोजन डोनेट नहीं कर सकता. सो ऐसा कोई सॉल्वेंट होगा जिसमें चार्ज तो है बट फिर भी वो हाइड्रोजन डोनेट नहीं कर सकता. तो सच सॉल्वेंट विल फेवर SN2 मैकेनिज्म. नेक्स्टली, रेट ऑफ रिएक्शन is inversely proportional to steric hindrance. मॉलिक्यूल के अंदर जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतने ही चांसेस कम हो जाएंगे SN2 रिएक्शन के. सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विल बी, मिथाइल का सबसे ज्यादा होगा क्योंकि मिथाइल में बिल्कुल भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है. तीनों हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन को वो इजीली पार कर सकता है न्यूक्लियोफाइल, इसीलिए मिथाइल का कौन सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा. देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी, देन अलाइल एंड देन बेंजाइल. एक्चुअली देखा जाए तो टर्शरी, अलाइल, बेंजाइल SN2 मैकेनिज्म दिखाते ही नहीं है, सिर्फ प्राइमरी, सेकेंडरी और मिथाइल दिखाते हैं. सेकेंडरी का भी रेट ऑफ रिएक्शन कम होता है बट इट कैन शो SN2 मैकेनिज्म. सो व्हाट आर द फैक्टर्स? पहली चीज है कि हमारा जो इस SN2 मैकेनिज्म है वो डिपेंड करता है, अगर दो मॉलिक्यूल रिएक्शन में पार्ट लेने वाले हैं तो इट विल अंडरगोइंग SN2 मैकेनिज्म. रेट ऑफ रिएक्शन जब सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करेगा और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करेगा तो वो SN2 मैकेनिज्म में जाएगा. न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करेगा तो न्यूक्लियोफाइल की पावर भी मायने रखती है. सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा सो इट विल फेवर SN2 मैकेनिज्म. देन इट इज फेवर्ड बाय पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट. ऐसे सॉल्वेंट जिसमें चार्ज तो डेवलप हो सकता है लेकिन वो हाइड्रोजन डोनेट नहीं करेगा. देन सच सॉल्वेंट विल फेवर SN2 मैकेनिज्म. एंड लास्टली, जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना ही SN2 जाने के चांसेस कम होते जाएंगे. जितने बल्कि ग्रुप उसके ऊपर लगे होंगे कार्बन पर जिसपे अटैक करना है उतना ही चांस SN2 मैकेनिज्म का रिड्यूस होता चला जाएगा. सो दिस आर द फैक्टर्स ऑफ SN2 मैकेनिज्म. प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. So today I'll stop here only. In next video we will see with SN1 mechanism. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.